Okay. So today we will discuss the topic of product of two vectors. So my dear, in the product of two vectors, we classified in two ways. One is called scalar product. यार बच्चों, जैसे हमने क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज द मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। Vector product is represent a vector quantity, or we can say that the vector product is only defined for vector quantities and scalar product is only defined for scalar quantities. That's why we know very well that in a scalar quantities only magnitude is represented. बच्चों यार कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? कोई भी? नंबर। हाँ, नंबर। अमृता आप कल क्लास में नहीं थे? लास्ट नहीं सर, ऑथेंटिकेशन एरर था आज। अभी सौरभ के पास ऑफलाइन से गए तो उन्होंने करके दिया सर। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड with plus direction. direction. So I want to know that what is the magnitude? Please give me the answer. Value. Yeah, sorry. Value. Numerical value. Sir, a numerical value. Not magnitude is not a numerical value, my dear. Magnitude is the multiplication of numerical value and unit. My dear, the unit is also very important, na? Suppose the question is, if I say a 2 kg potato, so the quantities is what? 2 kg. Means mass na? The quantity is mass. Am I right? Yes, sir. और अगर मैं बोलूं कि 2 meter per second towards east, so what is the quantity? 2 meter per second. Means velocity, na? Yes sir. My dear friends, let us see. अगर मैं आपको ये बोलता हूं 2 kg पोटैटो, ठीक है ना? सो दैट मीन्स आपको दिमाग में आता है 2 kg देखकर समझ में आ गया कि मास क्या है बच्चों? मास है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों, अगर ये बोलूं कि 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, so what is the meaning? The meaning is 2 meter per second Vector quantity. means इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। बस क्या है, मीटर पर सेकंड लिखा है तो हम क्या बोलेंगे इसको? वेलोसिटी। माय डियर, क्लियर? इज इट क्लियर? So the important thing is that scalar product only gives the magnitude, means we have unit and numerical values, but in vector product we have gives a magnitude and direction both. Thus in a vector product our answers are in terms of magnitude and direction. Clear? मतलब वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे जो आंसर्स होंगे वो द मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। स्केलर प्रोडक्ट में जो हमारे आंसर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर आएंगे? मैग्नीट्यूड लेकर आएंगे। इज इट क्लियर माय डियर? यस सर। सो बच्चों, इन अ स्केलर प्रोडक्ट आपको समझना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम बच्चों एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। किस नाम से जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट के नाम से। डॉट प्रोडक्ट मींस अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, this is indicates that कि here scalar product is represented, means इन दोनों वेक्टर्स का आपस में क्या किया गया है?
स्केलर प्रोडक्ट किया गया. So my dear friends, in A dot B, first of all, write the magnitude of A vector into magnitude of B vector into cosine angle between A vector and B vector. My dear, here theta is the angle between vector A and vector B. Is it clear? Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, And mod of A is the magnitude of A vector, magnitude of vector A. Mod of B is the magnitude of vector B. Okay. So my dear friends, if two vectors, one is the vector A and other one is the vector B, and angle between two vectors is theta, then the scalar product of vector A dot vector B is equal to mod of A into mod of B into cos theta. Is it clear? yes, sir. Is it clear? सर Yeah. वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी. हाँ, डॉट इसलिए लगा है कि डॉट साइन स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. डॉट इज इंडिकेट्स अबाउट स्केलर प्रोडक्ट. And the self understanding is that ki here two vectors are, matlab here the vectors between two vectors. Clear? Here the product between two vectors. Is it okay? So dot Yes. product is it is a symbol. So let us see the basic example. We have a one example. Suppose F equal to 12 Newton force applied on block at an angle 60 degree from horizontal thus the block cover a 5-meter distance horizontally, then find the work done by external force. Okay. So my dear friends, please read be carefully for this question. Here, the force is 12 Newton. अच्छा, मेरे को ये बताओ बच्चों, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर और स्केलर? वेक्टर. वेक्टर. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? Vector. वेक्टर. वेक्टर. एंड वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. वेक्टर. अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मेरे दोस्तों. वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. My dear friends, please read this question be carefully. Here the 12 Newton force applied on the block at an angle 60 degree from horizontal. So just draw the situation. This is the block and the force F is equal to 12 Newton applied on the block at an angle 60 degree from horizontal. So this angle is 60 degree from horizontal. 60 degree from horizontal. Thus, the block is displaced horizontally 5-meter distance. How much distance? Is 5-meter distance covered by the block horizontally. So this is 5 meter.
क्लियर मेरे दोस्तों? सो इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज जो ग्रीन कलर से बना है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड बच्चों ये जो वेक्टर है ये भी एक फोर्स वेक्टर है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? 60 degree. 60. So here theta is equal to 60 degree. Now work done is equal to how much? W is equal to F dot S. Vector dot W is equal to F dot S. So F is the magnitude of F into magnitude of S into cos theta. My dear, W is equal to the magnitude of F is 12. Magnitude of S is 5. Cos 60. Cos 60 degree is equal to what? Half. By 2. Half. So answer is 30. 32. Is it clear? Yes, sir. Okay, my dear. My dear, it is the one more important point is this. First of all, listen be carefully. अगर बच्चों ऐसे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, एक कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। first point is this, the point number A is that अगर बच्चों सोच के देखिए A डॉट ए अगर सेल्फ प्रोडक्ट कराया जाए, अगर सेल्फ वेक्टर का खुद से ही प्रोडक्ट करा दिया जाए डॉट प्रोडक्ट, तो ये किसके बराबर होगा? माय डियर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए हो गया, और अब खुद सोचो ए वेक्टर अपने वेक्टर के साथ ही एंगल क्या बनाएगा? 0 degree. 0 degree. So 0 into degree. cos 0 degree. So cos 0 is always 0. तो a क्रॉस डॉट a ऑलवेज किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? So cos 0 no, sorry. Cos 0 is never can be 0 ना, it is 1. Cos 0 degree is always 1. So ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? a square. A is the magnitude of a vector. A is the magnitude of a vector. So याद रहेगा? Be remember and be careful. The C, if dot product with the same vectors, then always equal to the square of magnitude. This is very important point. Yes, sir. Okay, my dear. हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे पास 3 तरीके के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक i कैप एंड j कैप और k कैप. So let us see I dot I किसके बराबर होगा? And we know very well the magnitude of I, magnitude of J and magnitude of K cap किसके इक्वल होता है? 1. Very good. It is the unit vector ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा. बहुत अच्छे, जिस बच्चे ने ये रिप्लाई दिया है वो क्लासेस को बहुत अच्छे से ले रहे हैं. वेरी गुड. ठीक है. So we know very well the magnitude of I cap, the magnitude of J cap, and always remember, be carefully, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज हमेशा कितना होता है? 1 होता है. So the magnitude of a unit vector is always 1. नाम से है ना यूनिट, यूनिट मींस 1. So my dear friends, I dot I कितना होगा आप मेरे को? 1. I square. I square. Okay. कुछ बच्चों ने बोला I square, कुछ बोल रहे 1. तो देखते हैं मैंने क्या लिखना है? I dot I. Magnitude of I is 1. Magnitude of again I is 1, and I dot I cos 0 is also 1. So answer is 1. And so I dot I always किसके बराबर होगा बच्चों? 1 के. चलिए मेरे को बताओ बच्चे J dot J क्या होगा? 1. और K dot K क्या होगा? 1. Is it clear? Yes, Is sir. it clear? Yes, So sir. first of all याद रखने वाली बात है कि सेम टाइप के यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट ऑलवेज किसके बराबर होता है? 1 के. 1. ठीक है. I dot I is equal to 1, J dot J is equal to 1, and K dot K equal to 1. Is it clear? Yes, sir. Now the point number C. Point number C. If
both vectors are parallel to each other. Parallel to each other. अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मींस सपोज दिस इज द वेक्टर A and this is the vector B. So my dear friends, vector A dot vector B किसके इक्वल होगा? AB. Vector A dot vector B is what? A and B B. cos 0 degree, and we know very well cos 0 parallel vector never can intersect. Never can intersect Okay. each other means the angle between A and B is 0 degree. So cos 0 is always 1. 1. Thus हमेशा याद रखिए पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट्स उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं. इज इट क्लियर? पैरेलल Yes, sir. वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा उनके मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होता है. ओके, सी पॉइंट. अब डी पॉइंट देखते हैं. if both vectors are perpendicular to each other, if both vectors are perpendicular to each other, 0. so my dear, very good. जिसने भी जीरो बोला बहुत बढ़िया. So देखिए, this is the vector A and this is the vector B, and here the vector A, angle between vector A and vector B is 90 degree, and very well important thing is that the cos 90 is always 0. So A dot B, so A vector A dot vector B is always A B cos 90 degree, and cos 90 is 0, so vector A dot vector B is what? 0. 0. Is it clear? Yes. याद रखिएगा, अगर कभी भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, अगर आपको कभी भी प्रूफ करने को आए ना कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्रूफ करिए या निकालिए, ऐसा कोई आइडिया दे, दिमाग में सीधे क्लिक होना चाहिए कि इनका उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज किसके बराबर होगा? 0. 0 होगा. किसके बराबर होगा? 0 होगा. इज इट 0. क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास फिर से आते हैं. ये देखिएगा आप लोग, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप. इसी तरीके का एक रेफरेंस फ्रेम और बनाते हैं, ठीक है ना? या आप खुद सोचो, अगर मैं आई डॉट जे कराऊं, आई डॉट जे, सो वो किसके बराबर होगा? 0. आई डॉट जे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप? टेल मी. इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऑलवेज, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 1. 1. Let us see. Magnitude of I is 1 na? Yes, sir. Magnitude of J is also 1 na? Yes, sir. And the angle between I cap and J cap is 0. 90 degree na? My dear, 90 here not is 0. Angle between I cap and J cap is what? Yes, If- cos 90 degree. And cos 90 is what? 0. 0. 0 degree. So we can 0. say that I dot J always equal to what? 0. 0. 0. Similarly, tell me, my dear, J dot K is what? 0. 0. 0. है ना? Because the angle between J dot K is also 90 degree na? 90 degree. And tell Yes, me, what is the value of K dot IE? 0. 0. This is also 0 ना? अच्छा बच्चों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि I dot K कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? 0. नहीं. 0 है ना? Okay. भाई जब K dot I 0 है, so I dot K कितना होगा? 0. 0. 0. So एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिलता है. ये पॉइंट का नेम क्या था? पॉइंट नंबर ई. पॉइंट नंबर ये ई कहता है कि अगर दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का आपस में मल्टी डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो ऑलवेज 0 के बराबर होगा. एंड एफ पॉइंट ये है, एफ पॉइंट ये है कि आपको ये बोलना है, yes Deepak, angle is the very important for determination of magnitude. Is it clear?
Yes, Yes, sir. sir. सो माय डियर, आपने देखा कि अगर दो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो ऑलवेज जीरो के इक्वल होता है, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा कि दो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो वो भी जीरो के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी देखा, इस आई डॉट जे करा तो जीरो आया और जे डॉट आई करने पर भी वैल्यू क्या आई? जीरो। Zero. इज इट क्लियर ना? I dot j is equal to 0 and j dot I equal to 0. So we can say that the A dot B is equal to B dot A. Am I right or wrong? Yes, sir. Right, sir. So scalar product is always hold a cumulative property. Is it clear? Yes, sir. Now, my dear friends, one important point is that G point. If A dot B plus C मेरे बच्चों, अगर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स A डॉट B प्लस A डॉट C. Is it clear? Yes, So this sir. is called a distributive property. Distributive property. So my dear friends, स्केलर प्रोडक्ट कम्युलेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों को होल्ड करता है। आई डॉट आई किसी भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल आई डॉट आई इज ऑलवेज 1, j dot j is equal to 1 and k dot k is equal to 1. But if the both vectors are perpendicular to each other, then such dot product is 0. So we can say that I dot j is 0, j dot k is 0, k dot I is 0. And one important thing is that a dot b is always equal to b dot a. So चाहे आप a dot b करो या b dot a करो, कोई भी फर्क पड़ता नहीं। खुद तुम सोचो, just think about that. क्या मैग्नीट्यूड 2 into 1 और 1 into 2 पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर 2 into 3 करूं तो वैल्यू कितना आएगा? 6. एंड अगर 3 into 2 करूं तो 6. तो भी 6 है ना। सो माय डियर, अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, सो a डॉट b करने पर वैल्यू 6 मिल रही है, आइदर b डॉट a करने पर भी वैल्यू क्या मिलेगी? 6 ही मिलेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट को समझना चाहिए। अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट कहूं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर लिया a विच इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक वेक्टर और है, वी हैव अनदर वेक्टर, वेक्टर b इज a2 i कैप प्लस b2 j कैप plus C2 K cap. Is it okay? Yes, Okay. sir. So my dear, यहां से अगर A क्रॉस B निकालना है आपको, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, सो माय डियर सबसे पहले इस टर्म को आप इस A1 वाले को, इस वाले को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों के साथ, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। आपको प्रोडक्ट करना तो आता है ना, बेसिक प्रोडक्ट। सो Yes, हमारे sir. पास टर्म क्या आता है? हमारे पास टर्म आता है a1 a2 i डॉट i प्लस a1 b2 i डॉट j प्लस a1 c2 i डॉट k. नाउ माय डियर्स b1 को अब फिर से इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल a2 के साथ, फिर b2 के साथ और फिर c2 के साथ। So my dear, plus b1 a2 j dot I plus b1 b2 j dot j plus b1 c2 j dot k. Now my dear, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बचा c1 की कैप। तो c1 के कैप को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, 1 by 1 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे हम लोग। सो हमारे टर्म्स निकलेगा यहाँ पर प्लस c1 a2 k डॉट i प्लस c1 b2 k
dot J plus C1 C2 K dot K. So as we know my dear, अभी हम लोगों ने देखा है ना एक पॉइंट पे कि I dot J जो है वो क्या होगा, 0 होगा, because I vector, suppose this is the I and this is the J and this is the K. So I cap and J cap, the angle between I cap and J cap is 90 degree ना. So if Yes, two sir. vectors, two perpendicular vectors add किए जाए, अगर दो perpendicular vectors को add किया जाए तो उनका dot product always किसके बराबर होता है, 0 के Zero. बराबर. Zero. तो I dot J किसके इक्वल हो जाएगा, 0. Zero. I dot K भी क्या हो जाएगा बच्चों, Zero. 0. Zero. J dot I भी क्या हो जाएगा, Zero. Zero. J dot K भी Zero. 0, and also K dot I, Zero. Zero. K dot J is Zero. because ये सारी वैल्यू 0 इसलिए हो रही because I, J, I cap, J cap and K cap perpendicular to each other. All three vectors are perpendicular to each other. Thus, the dot product between two vectors is 0. Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, sir. as we know, if I dot I is what? I One. dot Y is 1. J dot J is 1. One. One. K dot K is 1 One. because both are same vectors and Yes. angle between I cap and I cap is 0 degree. Is Zero. it clear? Yes, sir. Yes, sir. So now the A cross B, now my dears, A cross B, vector A cross vector B is equal to A1 into 1 plus 2 into 1 plus 1 is 1. A1, I'm sorry, A1, A2 plus B A1, A2, plus बाकी सब B1. 0 हो जाएगा ना, 0 into something is 0. Is it Yes, clear? sir. भाई Yes, sir. I dot J की वैल्यू 0 है और 0 में अगर मैं A1 B2 को मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर होगा, 0. Zero. Zero. I Yes, sir. dot K is also 0 and 0 multiply with something is 0. J dot Yes. I is 0 and 0 into something is 0. Zero. But K dot J dot J is 1 na. Yes, sir. 1 into B1 B2 is becomes B1 B1. B1, B2 B2. plus B1, again B1, J dot B2. K is 0. Okay. Yes, K sir. dot I is 0. So 0 into something is 0. K dot J is 0 and K dot K is Zero. C1. C1. Is it clear? Yes, sir. So it is the simple concept, and from this derivation, we have simple idea. If vector A is equal to A1 I cap plus a B1 J cap plus B1 J cap plus C1 K cap, my dear, vector B is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus sorry, it's A2. It's A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. Then in dot products, A dot B, the coefficient of I multiply with coefficient of I of second vector. The coefficient of I of first vector multiply with coefficient of I of second vector. That's why it is A1, A2. Plus similarly, the coefficient of J vector, J cap of first vector multiply with coefficient of J cap of second vector. इसलिए we can say that it is B1, B2. Similarly, it is C1 and C2. My dear, कभी भी orthogonal unit product का, orthogonal vectors का, these are the orthogonal vectors. My dear, these are the orthogonal vectors. So अगर कभी भी orthogonal vectors का आपस में dot product करना हो, so always remember I वाला I के साथ, J वाला J के साथ and K वाला K के साथ. Is it clear? This is the very easy. Yes, sir. And Yes, let sir. us think about that. A1 multiplication of A1 A2 plus multiplication of B1 B2 and plus multiplication of C1 C2 is only magnitude or magnitude and direction both. Magnitude and direction both. Amrita, please be careful and see properly. The multiplication and addition of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 have direction also.
No. No, Multiplication No, of sir. But direction No is not direction. you possible. told that कि sir इसमें direction भी है और magnitude भी है. सर वो Some A directions are वेक्टर एक डॉट cancelled. B वेक्टर के लगे लगा ऐसा. It's only magnitude, na? Yes, Okay, sir. I can understand. So for better clarification, just I give some numbers. Suppose vector A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and vector B is equal to, बहुत देखते हैं कौन बच्चे कितने फास्ट करेंगे. Vector B is equal to 6i cap plus 5j cap plus 7k cap. Now, my dear, what is the value of A dot B? Your time start now, and give the answer in comment box. Simple, is it? It is very simple, because similarly the coefficient of I of first vector multiply with coefficient of I of second vector. Thus 2 into 6 is 12. Similarly, I'm sorry, it is J cap also. So J, 5 into 3. 5 into 3 is a 15. 15 15. plus 4 into 20. 7 is 28. 20. So my dear, this is what? 8 plus 5 plus 2 is 5. 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4, and 4 plus 1 is 5. Thus answer is 55. 55. 55. This is only magnitude, na my dear. सर यूनिट नहीं रहेगा ना. हाँ नहीं हो सकता है. Unit. If suppose this vector A is measured in meter and this is measured in say Newton, so we can say that the dot product of this is Newton into meter. Is it clear? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Very good, Amrita. सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी सर, सिली मिस्टेक. एक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. जल्दी जल्दी. सो माय डियर, आपने सिंपली एक चीज देखा कि हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या किया. सिंपली अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, सो आई फर्स्ट वेक्टर का जो कॉफिशिएंट ऑफ आई है सेकंड वेक्टर के कॉफिशिएंट ऑफ आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. एम आई राइट? Yes, sir. एंड सेकेंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का जो कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप है वो सेकेंड वेक्टर के कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप से ही मल्टीप्लाई हुआ. सिमिलरली Yes, sir. the third vector k coefficient of k cap of first vector multiply with coefficient of k cap of second vector. Is it clear? Yes, sir. So my dear friends, एक और पॉइंट इसी के साथ डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर है H के बाद अगला पॉइंट आता है I. Suppose the most of the question is asked about finding the angle between vector A and vector B. If the question is asked about find the angle between vector A and vector B. So my dear friends, first of all remember point, यहाँ पर remember point क्या है? Always use dot product. ये तो बिल्कुल ऐसे सेट कर लो माइंड में कि अगर कभी भी आपसे एंगल पूछा जाए, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने को बात करी जाए, सो ऑलवेज फाइंड अ डॉट प्रोडक्ट. ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट. क्लियर? ये वर्ड बिल्कुल सेट हो गया ना सेंटेंस, है ना? बहुत आसान है ना? अच्छा बच्चों. Yes, sir. Okay, so my dear, as we know, the vector A dot B is what? Vector A dot B is what? The magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos theta. And theta is what? It is the angle between vector A and vector B. Thus, cos theta is equal to vector A dot vector B
upon mod of A into mod of B. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Oh, and the final answer is theta is equal to cos inverse A dot B divided by mod of A into mod of B. B. Is it clear? Okay. Now और let us cos see. इनवर्स की कोई ऐसी वैल्यू रहती है कि जैसे cos थीटा की रहती है, जैसे cos इनवर्स की कोई वैल्यू रहती है? Cos inverse 1/2 कितना होगा? -1/2. 60 degree. हाँ. So my dear friend, if you want to find the angle between two vectors, then always use a dot product or using this formula. Is it clear? If you suppose अगर तुम्हें ये फॉर्मूला ही नहीं याद है तो तुम्हें परेशान नहीं होना कि सर मुझे ये फॉर्मूला, आपको डॉट प्रोडक्ट पता है ना? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. फॉर एग्जांपल, for better clarification, let us consider one example. Suppose we have an example. Vector A is equal to give me a 1 minute. Vector B A is equal to, suppose 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, and vector B is equal to 6i cap plus 8j cap plus 10k cap. This is a very easy question actually. Okay, so my dear friends, without using the any formula, first of all tell me what is the angle between vector A and vector B. What is the angle between vector A and vector B without using any formula? Just guess. Just use your mind and tell me what is the angle between vector A and vector B. Tell me, my dear. Okay. First of all, please see the vector B. So Vector B is- 57. Give me a 1 second. Just think about that. Vector B is what? It is 6i cap plus 8j cap plus 10k cap. We can return in form of 2 times A vector. Is it right? Yes, sir. So, my dear, vector B, the direction of vector B is along the direction of A vector or not? Yes, Only sir. the magnitude it's 2 times, na, my dear. Yes, sir. Otherwise, it is represented a vector, na. तो जिस direction में A vector होगा, उसी direction में B vector होगा कि नहीं होगा? हाँ, sir. So the angle between A vector and B vector is what? 0 degree. Same. 0 degree. Simply है ना. मैंने बहुत आसानी से ये बता दिया कि angle between A vector and B vector is 0 degree. अब बच्चों, अगर इसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर लें तो मतलब हमें जो भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो 100% ट्रूथ है. Is it right? Yes, sir. So just see for angle, first of all here solution. वेक्टर से डबल है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, इधर 8 होगा. नहीं, थीटा ही है लेकिन थीटा क्या वैल्यू 8 है और यहाँ पे 5 और 10 है ना, तो बी वेक्टर ए वेक्टर से डबल है. क्या कह रहे हैं अनुजा? Hello. So my dear, the vector A is equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, and vector B is equal to 6i cap plus 8j cap plus 10k cap. My dear, tell me what is the magnitude of A vector? Tell me. Magnitude of A vector is what? It is the coefficient of I cap, which is 9, square of coefficient of I cap plus 16
plus 25. 25. So what is the value? 25 plus 25 is 50. We can return is 5 root 2. Am I right? Yes, sir. Tell me what is the magnitude of vector B. अब यार प्लीज निकालो ना आप लोग तो जानते हो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ. 36 plus 64 plus 100 which is equal to 200. 10 root 2. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now A dot B. What is the value of A dot B? So I coefficient multiply with I coefficient. Thus 6 into 3 is 18. Is it clear? 4 into 8 is 28. 32. 32. And 5 into 10 is 100. 50. 50. कितना आ गया ये? 100. 70. Is it clear? Is it clear? Now the cos theta is equal to formula क्या है बच्चों? Vector A dot vector B divided by mod of vector A into mod of vector B. Clear? तो A dot B आपके पास क्या है बच्चों? आपके पास क्या है? 100. So it's a 100. Divided by और A dot mod of A कितना है? 5 root 5 root 2 into into mod 10 of B कितना है? 10 root 2. इसको भी सॉल्व कर लो बच्चों. कितना आता है? 50 into 2 which is equal to 100. 100. So my dear, cos theta value कितना आ गया? 1. सोचो cos theta 1 कब होता है? 0. When theta is equal to 0 degree. प्रूफ हो गया ना? Yes. प्रूफ हो गया. तो आपने जिस चीज को मैथमेटिकली, जिस चीज को अभी हमने थ्योरेटिकली समझा, अपने पॉइंट से, अपने आईक्यू से समझा, उसको हम लोगों ने यहाँ मैथमेटिकली कोरिलेट किया कि नहीं किया माय डियर? हाँ सर. है ना? यही तो समझ में आई. तो हम Yes, A sir. डॉट बी, अगर हमें कभी भी एंगल्स निकालने को आएगा तो हम कैसे निकालेंगे? formula से. cos थीटा का फॉर्मूला, जिसमें क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल. 0 डिग्री एक आइडिया देता है. 0 डिग्री आपको एक आइडिया दे रहा है दैट here vector A and vector B are parallel. Parallel. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. Is it clear? My dear, एक और important point है. अगर यहां पर मैं बॉक्स में लिख देता हूं, be remember and be careful. अगर बच्चों कभी भी इस पॉइंट के बारे में कोई बात करे आपसे, कभी भी अगर आपको ऐसा बोला जाए कि सर फाइंड इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या फिर है ना, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A and vector B are perpendicular to each other, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बी रिमेंबर द थीटा मस्ट बी 90 डिग्री. दैट इज द A dot B is equal to 0. सो माय डियर फ्रेंड, अगर कभी भी किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो ऑलवेज समझना कि क्या होगा, वो वेक्टर कैसा होगा, वो दोनों Parallel वेक्टर्स एक vector. दूसरे के परपेंडिकुलर. Parallel. Let us see the, for better clarification, just solve one question, and I humble request you, please solve yourself. Suppose the vector A is equal to 2i cap plus j cap, 2i cap plus j cap plus 5k cap, and vector B is equal to say ai cap plus 3j cap plus 2k cap. If vector A and vector B are perpendicular to each other, then find the value of A
small a. So let us see this question. Here the vector A is 2i cap plus j cap plus 5k cap, and vector B is a I cap plus 3j cap plus 2k cap. First information is that vector A dot B are perpendicular to each other. So we can say that अगर बच्चों perpendicular है तो simple solution क्या कहता है? Simply solution ये कहता है if vector A and vector B are perpendicular to each other, perpendicular to each other, so dot product vector A dot vector B is what? 0. Is it clear? As we know, Yes, if the both vectors are perpendicular to each other, then dot product is 0. And अगर आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं बच्चों, तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ. इज इट क्लियर? yes sir. ओके, सो मेरे बच्चों ए डॉट बी कितना आएगा? ए डॉट बी कितना आएगा? इट्स अ 2a प्लस टेल मी 3j Plus 3. plus 10k 3 plus 10 is equal to 0. So my dear friends, it is 2a is equal to minus 13. So a is equal to minus 6.5. Is it clear? तो कुछ जिन बच्चों के आंसर्स नहीं आ रहे उनको देखना चाहिए प्लीज. ओके, Sir, can you show that solution? yeah, of course. This is a very simple solution. Is it clear? Sir, can you explain me this? Okay, again I want to explain. Here in this information, the question gives a very important information. Here both vectors A and vector B are perpendicular to each other. Then find the value of vector A. So my dear friends, in important note points, if मैंने अभी आपको बताया, if A and B are perpendicular to each other, then theta must be 90 degree and A dot B must be 0. So A dot B Because cos 90 is equals to 0. So here if vector A and vector B are perpendicular to each other, so A dot B is 0. My dear friends, here both vectors are orthogonal vectors. So if you want to the multiply of orthogonal vectors, so the coefficient of I cap multiply with coefficient of I cap, the coefficient of j cap multiply with coefficient of j cap, and the coefficient of k cap multiply with coefficient of k cap. So 2 into a is 2a. Is it clear? 1 into 3 is 3 and 5 into 2 is 10 is equal to 0. Is it clear? So Yes. 2a is equal to minus 13 and a is equal to 6.5 negative. Okay, sir. Okay. Okay. Please fill the question. First question is vector A is equal to 2i cap minus bj cap plus 5k cap. And vector B is equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. Now, in this information is vector A and vector B are perpendicular to each other. So, for A dot B is 0 because vector A and vector B are perpendicular to each other. Is it right? Yes sir. So बच्चों A dot B इसका dot product जब कराते हैं तो क्या करते हैं? The coefficient of I add multiply with 2 into 3 is 2 into 3 is 6. Okay बच्चों, the 4 minus B plus minus B into 4 is Minus minus 4b. B into Minus 4 is 4B. 4B. And बच्चों Plus 25. and plus 25. This should be equal to 0.
So बच्चों 4b is equal to what? It is minus 31. 31. So a is equal to 31 by 4. That's why the answer is 7.75. 7. बचा कितना? 7.75. 7.7 7.7 कुछ समथिंग आएगा, है ना? Is it Five. clear? 7.75. So, हाँ, sir. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? So, बहुत Yes, सारे sir. बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा था, 6.5, 6 point something. So थोड़ा सा आप लोग और थोड़ा काम करिए. But is it okay? Now my dear, hello, what are you saying? सर पूरा लिखो ना 1 मिनट का विषय. Okay, 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 okay. सर सबसे पहले किसका आया था? अच्छा, सबसे पहले किसका आंसर है, ऐसा ही बताना है क्या? सबसे पहले वाले बंदे का जो आंसर है उसका नाम है प्रवीर सिंह, 7.75. उसके बाद सर? Oh my God. अच्छा, उसके बाद अच्छा, give me 1 second. So in vector product, first of all, we have vector quantity is defined for magnitude plus direction. Am I right or wrong? yes, sir. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उन्हें क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे. तो इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट वी गॉट द आंसर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. इज इट क्लियर? तो चलो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा फील कराते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट को फील कैसे कराते हैं? सपोज करो बच्चों, एक हमारे पास, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास इस तरीके का एक बोल्ट है, इसमें एक रिंच ले ली. रिंच समझते हैं ना आप लोग? WRENCH. नहीं समझते? यस सर. अमृता, तुम रिंच नहीं समझते? सर गेम तुमने में कभी देखा नट बोल्ट खोला है कि नहीं खोला है? नहीं सर, लेकिन पता है रेंज क्या है. रेंज है ना? ओके. अगर सोचो, अगर मेरे को इस बोल्ट को अंदर की ओर लेके जाना है तो मैं इसको किधर की तरफ घुमाऊंगा? खुद तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? इफ दिस ये जो नट बोल्ट है, ये बोल्ट अगर अंदर की ओर जाए टूवर्ड्स इनवर्ड द प्लेन, सो इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होना चाहिए वो किधर की तरफ होना चाहिए? इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज सेंस और काउंटर क्लॉकवाइज सेंस? काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. मींस अगर हम इस रिंच को काउंटर क्लॉकवाइज सेंस रोटेट कराएंगे, सो जो बोल्ट है वो अंदर की ओर जाएगा. एम आई राइट? राइट सर. और अगर मेरे को इस नट बोल्ट को बाहर की ओर निकालना है, ओपन करना है, तो ये किधर की तरफ घूमना चाहिए? किधर की तरफ घूमना चाहिए? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज सेंस. एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. सो मींस ये केस है क्लोज करने के लिए, टाइड करने के लिए. दिस केस इज टाइड. मतलब अगर कभी भी मैं कोई भी रिंच इंडिया के पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी रिंच ली जाए और उस रिंच को क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया जाए, तो वो बोल्ट क्या होता है? टाइड होना स्टार्ट होता है. एम आई राइट और रॉन्ग? अगर काउंटर क्लॉकवाइज, इज इट क्लियर? और अगर बच्चों उसे लूज करते हैं, लूज करने का मतलब अगर हम उसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करें, तो वो लूज होता है. एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर. फील करना अच्छे से. आपको अगर इस रिंच को काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर. अगर आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहते हो, तो आपको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा. am I right or wrong? और अगर आप बच्चों इसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहते हो, तो आपको नीचे की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा. इज इट क्लियर?
और ये जो है बोल्ट जो है वो किस एक्सेस के किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा? तो अपनी इस येलो कलर की एक्सेस के अबाउट घूमेगा कि नहीं घूमेगा मेरे बच्चों? यस सर। यस सर। है ना? इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई डी, ये आर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो जब R का F के साथ प्रोडक्ट कराया जाएगा, R का F के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमें मैग्नीट्यूड मिला RF। मैग्नीट्यूड तो इतना ही मिला, उसके साथ साथ डायरेक्शन किधर मिली? अगर मैंने ये वाला कंसीडर किया तो क्लॉकवाइज मिली कि नहीं मिली? अरे बोलो। यस सर। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर मैग्नीट्यूड भी मिला और डायरेक्शन भी मिली। एम आई राइट और रॉन्ग? मिली ना डायरेक्शन, वो क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं किया? और अगर उल्टा कर दे, मान लो आर क्रॉस ब्लू वाला एफ कंसीडर कर ले, तो कितना मिलेगा बच्चों? तो कितना मिलेगा? आर एफ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर की तरफ मिलेगी बच्चों? डायरेक्शन किधर? काउंटर क्लॉकवाइज। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो बच्चों। यस सर। Is it okay? So the important thing is that आपको ये समझना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डायरेक्शन भी इंडिकेट। डायरेक्शन। बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? है ना? Yes, So sir. first of all, let us see how to represent a vector product. So my dear friends, vector product को फील आया ना, विजुअलाइजेशन आया ना? सो वेक्टर प्रोडक्ट को मेरे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अभी तक हम वेक्टर जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए और बी के बीच में डॉट लगाते थे ना, वैसे ही यहाँ पर वेक्टर ए और बी के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट करने का मतलब है क्रॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? क्रॉस लगाते। So vector A cross vector B indicates the magnitude of A vector into magnitude of B vector into sine theta. Theta is the angle between vector A and vector B. Theta is the angle between vector A and vector B. My dear friends, मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? क्या ये फॉर्मूला सही है? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इतना डाटा मैग्नीट्यूड को। तो डायरेक्शन भी आनी चाहिए ना बच्चों? डायरेक्शन भी आनी चाहिए ना? सो इसके साथ साथ हम लिखते हैं यहाँ पर एन कैप। एन कैप, this is the unit vector which is represent the n cap, indicates the direction of resultant vector. Is it clear मेरे बच्चों? Direction of resultant. अच्छा, सुनते हैं जरा सा एक बार। This is the vector A and this is vector B. If the magnitude of vector A is A and magnitude of vector B is B and the angle between vector A and vector B is this. So कभी एक बार पूछा जाएगा कि भैया पहले एक बार बताओ magnitude of A cross B कितना होगा? Magnitude of A cross B, vector A cross vector B. तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? A B sin theta. Is it clear? Is it clear? Okay. Yes, sir. For direction, for determination of direction, for determination of direction of A cross B, if you want to determine the direction of A cross B, then we use a right hand thumb rule. क्या यूज करना है? right hand thumb rule. So my dear friends, right hand thumb rule is a very easy rule, and first of all I want to deduct. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड थंब रूल होता है क्या।
राइट हैंड थंब रूल। RSTR का मतलब क्या है? अगर मान लो बच्चों ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दिस इज अ वेक्टर A एंड वेक्टर B, द एंगल इज थीटा। तो जस्ट फॉर A क्रॉस B, फॉर A क्रॉस B, कभी भी याद रखना वेक्टर कोई भी याद रखना, आज के बाद पूरी फिजिक्स में कभी भूलना भी मत कि कहीं भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा हो ना कहीं पर भी, तो सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत? तो आने वाले फ्यूचर में जब भी कभी हम कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसका फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा होगा, डेराइव होके क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा होगा, तो डायरेक्शन के लिए उसके लिए दिमाग में क्या रखेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? जस्ट स्ट्रेच योर राइट हैंड along the direction of first vector. देखिए बच्चों, A क्रॉस B है तो A is the first vector and B is the second vector. Is it clear? A is the first vector and B is the second vector. So what is the statement? Stretch your right hand in the direction of first vector and curve your fingers towards the second vector. Then thumb indicates the direction of resultant vector. Okay, एक बार फिर से देखते हैं। Stretch your right hand along the direction of vector A. Then curve your fingers towards second vector, towards B vector. Okay, then the thumb indicates the direction of resultant A cross B. Okay, simple statement है ना? Stretch your right hand along the direction of A vector. So suppose in this case vector A cross B, अगर हम करते हैं, जैसे कि मान लो आप फॉर एग्जांपल वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कर रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड, आप मेरे को एक बार बताओ, ये प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है या प्लेन के अंदर की तरफ आ रहा है? सिर्फ आप लोग खुद सोचो। स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर इधर की तरफ टूवर्ड्स राइट है, तो राइट की तरफ आप डायरेक्शन राइट हैंड को डायरेक्ट करो। आप देखोगे तो अगर B को ऐसे कर्व्ड करोगे तो जो थंब है वो बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आएगा। Am I right or wrong? Tell me my dear. Yes sir. So जो इसका A क्रॉस B है, A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी बच्चों? आउटवर्ड्स द प्लेन। Yes, sir. Yes sir. इज इट क्लियर? और अगर अच्छा एक बात बताओ बच्चों, B क्रॉस A करे तो स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर। इज इट क्लियर? B ऐसे ऊपर की ओर है ना, तो स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर। अब कर्व योर फिंगर्स टुवर्ड्स A, तो जो थंब है वो किधर की तरफ जा रहा है? अंदर की ओर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अंदर। आप लोग खुद से करो ना, खुद से करो, देखो आता है क्या आता है। तो इन्वर्ट द प्लेन आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? हाँ सर। सो क्या बच्चों इस केस में A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर है क्या? A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल है क्या? नो सर। नो। सो वन, चलिए जब इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये भी मिल गया हमें। अच्छा बच्चों, अच्छा एक पॉइंट मिला कि A क्रॉस B does not equal to B cross A, but A cross B equal to minus B cross A. Is it right? देखो ना, एक आउटवर्ड है दूसरा इनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के निगेटिव हुए कि नहीं हुए?
बोलो बच्चों, हाँ, है ना? सर लेकिन राइट हैंड थंब रूल तो ऐसा होता है ना ऐसा कहाँ होता है? सर? मैं आंसर मेरी सब उन्होंने So let us see important points about cross product. Okay. So first point is a point A number. Point A. Please remember, vector C is equal to vector A cross vector B. Clear? Very clear. आपने एक बात देखी कि अगर मैं किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलता है बच्चों? वी गॉट अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई हमें एक और नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्लीज फील, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। सभी लोग बोलो ना, और लोग भी है और बच्चे भी है, रिप्लाई दो ना आप लोग, सर होगा। आइदर इन कमेंट बॉक्स और वाया वॉइस. सो हमें पता है ए क्रॉस बी जो है वो सी वेक्टर होगा. मेरी बात सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हियर, द वेक्टर सी इज ऑलवेज perpendicular from both vectors A and B. This is the most important relation. This is the most important point. If A cross B is equal to C के वेक्टर C है, तो वेक्टर C जो होगा बच्चों वो A और B दोनों के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा. मैं फील कराता हूं, मैं फिर से फील कराता हूं. आपको याद करो, आपने क्या किया, ये वेक्टर A लिया और ये वेक्टर B लिया. अब जो आप खुद देखो, A क्रॉस A डॉट B, A क्रॉस B करने पर आपको जो डायरेक्शन मिली वो बाहर की तरफ थंब मिला कि नहीं मिला? बाहर की तरफ थंब मिला ना, A क्रॉस B. अब बाहर वाला जो थंब है वो A के साथ कैसा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. और B के साथ 90 डिग्री. 90 डिग्री. सो जो भी C वेक्टर है, ये जो वेक्टर C है, ये कैसा है? ये A के साथ भी परपेंडिकुलर है एंड B के साथ भी परपेंडिकुलर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी इज A cross B. A cross B does not equal to B cross A. मतलब it is does not hold a cumulative property. Does not hold cumulative प्रॉपर्टी. बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या नहीं फॉर होल्ड करता? कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता. अच्छा बच्चों, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? तो हाँ सर करता है. ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. दिस इज बिहेव, दिस होल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव property. Is it clear? यस सर. अब मेरे को एक बात बताओ, डी ऑप्शन, इफ both vectors are parallel vector. If both vectors are parallel vector, then A cross B is what? Think. जब तक मैं ड्रॉ करता हूं, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, and
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज व्हाट? वेरी गुड ओमकार, बहुत अच्छे, 0। ओके, कैसे किया? सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into magnitude of vector b into sine 0 degree. तो sin 0 is 0. 0. Zero. तो 0 into something is 0 into Zero. something is 0. 0. So we can say that a cross b equal to 0. मेरे दोस्तों याद रखना अगर किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है ना? आप लोगों ने बोला था ना कि सर आपने पढ़ाया नहीं है, तो वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि यहां जरूरी था। ठीक है ना? सो वी कैन से दैट इफ a cross b is 0, so we can say that vector a and vector b are coplanar vector, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, are coplanar vector. Is it clear? Yes, sir. ओके बच्चों, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप मेरे को बताओ, अगर बच्चों में इसी से एक पॉइंट निकालता हूं, अगर आप सेल्फ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हो, मतलब अपना वेक्टर अपने से ही मल्टीप्लाई हो, तो क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ई, बोलो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर बोलो जल्दी से। A square. 0, बिकॉज ए वाला ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। Zero. तो पैरेलल वेक्टर्स होगा, अपना वेक्टर अपने एंगल अपने मतलब मैं अपने साथ क्या बनाऊंगा? 0 ही रहूंगा ना, मैं हमेशा अपने आप को ही तो फॉलो करूंगा। So I'm always parallel with me. So we can say that the A cross A equal to 0. So यहां से बच्चों, यहां से let us see I cross I क्या होगा? 0. 0. J cross J 0. and K cross K 0. 0. Is it clear? So याद रखना, Yes, अगर sir. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं तो उन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now let us see the next point G. If both vectors, vector A and vector B, are perpendicular to each other, so vector A cross vector B is equal to AB sine 90 into n cap. AB sine 90 into n cap. Is it clear? And sine 90 is 1. Thus A cross B is equal to AB n cap. N cap is the direction of resultant. Okay. So बच्चों, इस बेसिस पर हमने क्या किया? हमें पता है ना कि एक वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर क्या होता है बच्चों? Perpendicular. नहीं, आप देखिए ना, अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, अब इस बारे में प्लीज अच्छे से देखिएगा, I J K। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया कि A क्रॉस B अगर C के इक्वल है, सो वेक्टर C ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा A और B के। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. मैंने ये बोला। अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा सा कोरिलेट होइएगा, I क्रॉस J करूं तो किसके बराबर आना चाहिए? अब I और J एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? And magnitude of I is equal to magnitude of J is equal to magnitude of K, which is equal to 1. So बच्चों, I cross J किसके बराबर होगा? 1.
1 नहीं, 1 into sin 90 और डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, k cap की तरफ। ठीक अब है। देखो, stretch your right hand along the direction of I cap, curved your finger towards J cap, तो thumb is indicates towards K cap. Am I right or wrong? हाँ सर। ओके, सो हमें मिल गया I क्रॉस J किसके बराबर मिल गया बच्चों? ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा बताओ, J क्रॉस K किसके बराबर होगा? J का K से मल्टीप्लाई करने पर J क्रॉस K, ठीक है। हाँ, आई कैप। I कैप, वेरी गुड। और K क्रॉस I किसके बराबर होगा बच्चों? K क्रॉस I, जे कैप। K क्रॉस I इज इक्वल टू J कैप। J बहुत cap। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब। अच्छा अब उल्टा करते हैं, उल्टा करके चलते हैं, उल्टा करते हैं। और आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ बच्चों, अगर मैं उल्टा रिवर्स जा रहा हूं, रिवर्स J डॉट I, J क्रॉस I क्या होगा? J क्रॉस I, स्ट्रेच योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ J कैप, along the, very good, बहुत अच्छे ओमकार, and curved your finger towards I cap, then thinks that the K cap is in, ऐसे नीचे नहीं जाना है ना, नीचे कैसे कर्व, ऐसे थोड़ा ना फिंगर्स कर्व्ड होंगी, ऐसे ही तो होंगी। तो J कैप ये है, I कैप ये है, तो बाहर की ओर है, तो इट शुड बी माइनस के कैप। अच्छा, सिमिलरली I क्रॉस K क्या होगा बच्चों? I क्रॉस K, I क्रॉस K, माइनस J कैप। और अब मेरे को देखो K क्रॉस J क्या होगा? K क्रॉस J, माइनस आई K कैप। क्रॉस J कैप इज इक्वल टू माइनस आई माइनस कैप। I। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। आप एक बार सर्किल ऐसे बना लो और एक बार सर्किल ऐसे बना लो, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनो, इसका नाम लिख दो I कैप, इधर लिख दो J कैप, इधर लिख दो K कैप। सिमिलरली इधर भी लिख दो I कैप, J कैप और K कैप। अब आपको करना क्या है? बहुत आसान है, आप पहले काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में जाओ, ठीक है ना? तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस इज टेकन अ पॉजिटिव। I क्रॉस J क्या बचा? जब I क्रॉस J लिखेंगे तो रिमेनिंग बचा हुआ देखेंगे, तो I क्रॉस J तो क्या बच गया आपके पास? K कैप बच गया ना? अब J क्रॉस K में क्या बच गया? I कैप, और K क्रॉस I इज J कैप। इज इट क्लियर? जे ओके। और अगर उल्टा जाना हो, रिवर्स, रिवर्स का मतलब है क्लॉकवाइज सेंस में, तो टेकिंग अ नेगेटिव, टेकिंग अ नेगेटिव, अ नेगेटिव। अब देखो K क्रॉस J, अब देखो K क्रॉस J आपके पास क्या मिलेगा? माइनस I कैप। माइनस आई कैप। J क्रॉस I क्या मिलेगा बच्चों? माइनस K कैप। और I क्रॉस K क्या मिलेगा आपके पास? J कैप। उल्टा जाना, I क्रॉस J K कैप, J क्रॉस K I कैप, एंड K क्रॉस I is J कैप। Is it clear? यस सर। Is it clear? यस सर। बोलो ना। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का प्रोडक्ट करा देते हैं। बेस्ट ऑप्शंस, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का प्रोडक्ट करा देते हैं। एच पॉइंट अगेन, ये बोल रहे एच पॉइंट, आप सर एक बार और समझा दो। चलो मैं बता देता हूं। आपने देखो एक बार देखा कि A क्रॉस B, मैंने आपको शुरुआत में बताया था A क्रॉस B C वेक्टर के बराबर है। सो वेक्टर C जो होगा वो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? Here A क्रॉस वेक्टर A क्रॉस B equal to vector C, so we can say that the vector C is equal to vector C is perpendicular to vector A and vector B. Thus I cross J, let us see, the magnitude of I is 1, the magnitude of J is 1, and both angles between I cap and J cap is 90 degree. So it is 1 into sine 90. Sine 90 is also 1. And for direction, this is a cross product. So for direction, we use a right hand thumb. So stretch your right hand along the direction of I cap, curved your finger towards J cap, then thumb is indicates along the K cap direction. Is it clear? So we can say that I cross J cap is equal to K cap. Similarly, J is in here, K cap. So stretch your right hand along the J direction. K cap is in here, then thumb is indicates along I cap. So this is J cross K is I. Now K is in here,
and K cross I, then thumb is indicates towards J cap direction. Is it clear? So we can say that I cross J cap is a K cap, J cross K is a I cap, K cross I is J cap. अगर रिवर्स में जाते हैं बच्चों, रिवर्स में जाते हैं आप, तो रिवर्स में भी जाके आप देखें तो J cross I stretch your right hand in this direction I, तो K cap अंदर की ओर which is negative, अगर बाहर की ओर पॉजिटिव है तो अंदर की ओर नेगेटिव. I cross K, I is in here or I is in here or K is the J is downward, so vertically upward is positive, so downward is negative. And K cross J, so it's a K and J, so this is minus I cap, so this is the result. इसको याद रखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप काउंटर क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस की बात कर सकते हैं. अगर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो वी कैन से दैट ऑल मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव. अगर क्लॉकवाइज सेंस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो ऑल मल्टीप्लिकेशन शुड बी नेगेटिव. सो वी कैन से दैट I cross J is K cap, J cross K is I cap, K cross I is positive J cap. Similarly, I उल्टा चलेंगे तो I cross K is minus J cap, K cross J is minus I cap, and J cross I is minus K cap. Is it clear? Oh, thank you. So finally, my dear, अब I points एक बार और देखते हैं. Suppose vector A is equal to A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap. Is it clear? And vector B is A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. Now, my dear friends, for A cross B, so first of all, the coefficient of I, this term is multiplied with this, and this. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो A1 is it equal to A1 A2 I cross I, फिर प्लस A1 B2 I cross J plus A1 C2 I cross K cap. Similarly, again represent a plus. Now the B1 J cap. B1 J cap is multiplied with A1 A2, B1 B2 or C1 C2. Okay. Now it's like this: B1 A2 J cross I cap plus B1 B2 J cross J plus B1 C2 J cross K cap. Similarly, my dear friends, for C1 K cap, so C1 K cap multiply with A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap. So my dear friends, here the value is C1 A2 K cross I plus C1 B2 K cross J and plus C1 C2 K cross K. So my dear friends, as we know, I cross I, J cross J and K cross A is what? What is the value of I cross I, J cross J and K cross K? Tell me, my dears. The I cross I is 0, na? J cross J is 0, na? And K cross K is 0. अच्छा बच्चों, I cross J किसके बराबर मिलेगा बच्चों? I cross K किसके बराबर मिलेगा? माइनस J. माइनस J. J cross I, सोचो. J cross I माइनस K cap. J cross K J cap. पॉजिटिव I क्या है ना? Positive K cross I K cross J cap. K cross J माइनस. माइनस I कुछ cap. बचा क्या? कोई नहीं. बचा क्या? नहीं. तो अब चलो लिखते हैं इसको. A cross B, vector A cross B. But बेचा 0 into something is 0 ना? 0 into something is 0. So बच्चों I देखो जरा K cap वाला जो टर्म है, सबसे पहले I cap लिखते हैं. क्या लिखते हैं हम लोग? I cap.
आई कैप वाले कौन कौन से टर्म है, जरा ध्यान से देखो, आई कैप वाले कौन कौन से टर्म है। तो आई कैप का तो कौन से मिला, एक तो ये मिला और दूसरा ये मिला, दो मिले टर्म्स। यस सर। तो B1 C2 माइनस C2 C1। यस वरद, टेल मी। C1 B2। Sir, by mistake. Varad, do you want to say something? By mistake, sir. Okay. Now tell me, my dear friends, tell me why। अब आई कैप लिखने के बाद, आई कैप लिखने के बाद आप क्या करो, जे कैप लिखो। कैसे लिखो, प्लस जे कैप, प्लस जे कैप। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जे कैप वाले कौन से, एक तो ये मिला C1 A2 और दूसरा क्या मिला माइनस A1 C2। दो दिखे ना, दिखे ना। तो C1 A2 माइनस A1 C2। क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा आगे देखते हैं। अब प्लस के कैप लिखो बच्चों। तो के कैप कितना होगा, देखो 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 डायग्राम में, इस सर्किल में कहीं के कैप नजर आ रहा है आपको। एक तो ये मिल गया A1 B2 और दूसरा B1 A2 माइनस है ना। सो A1 B2 माइनस B1 A1 B2 माइनस का B2 A1। इज इट क्लियर मेरे बच्चों, इज इट क्लियर? Yes, sir. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना सर। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट्स आई कैप इंटू B1 C2 माइनस C1 B2, फिर एक बार प्लस, फिर दोबारा अल्टरनेट में माइनस, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, A1 C2 माइनस C1 A2। प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, फिर प्लस के कैप A1 B2 माइनस B2 A1। मैं इतना तो आपके बारे में जानता हूं और मुझे पता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार इतना सब कुछ करना पड़ेगा कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा। तो इसको आसान बना, आसान कैसे, सर, एक बार फिर से लिखते हैं। हाँ सर वो के कैप का आपने शायद से वो रॉन्ग लिखा है। A1 B2 माइनस B2 A1 तो जीरो ही हो जाएगा ना। A1 B2 माइनस B1 A2 सही तो लिखा है, A1 B2 माइनस का B1 B2। ओके अच्छा 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 अच्छा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। इट्स अ B1 A2। इज इट ओके? नीचे भी यही गलती कर दी, B1 A2। अब ठीक है ना, A1 B2 माइनस का B1 A2। ये देखो ना B1 A2 है, ये A1 B2 है। क्लियर? यस सर। ओके चलो, अब ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन तो नहीं करने वाले ऐसे। तो जैसे सर ने हमें A डॉट B आसान तरीके से बताया, ऐसे ये भी बताना चाहिए। तो ये लिख लेते A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो अगर आपको इजी लगे तरीका तो प्लीज क्लैपिंग करिएगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, क्लास छोड़ के चले जाइएगा। A2 I कैप प्लस 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 B2 J कैप प्लस C2 K कैप। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर, अब A क्रॉस B कर रहे हैं, अगर आप A क्रॉस B कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसे दो डंडे खींचने। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, इस तरीके से टू पिलर्स आप बिल्कुल खड़े कर दो बिना सोचे समझे। ड्रॉ द बिल्डिंग्स एंड टू पिलर्स ड्रॉ करो। अब सबसे टॉप पे लिखो आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। लिख लिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और अब आपको करना है क्या है, आई का कॉफिशिएंट चेक करना है। क्या लिखा हुआ है, आई का कॉफिशिएंट क्या है, A1 A2। तो पुट द वैल्यू ऑफ A1। जे का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों, सबसे पहले ए के बारे में सिर्फ देखना है, सिर्फ ए के बारे में, सिर्फ ए के बारे में देखिए। अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए वाले लिखेंगे, फिर बी वाले वेक्टर्स के बारे में लिखेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ आई ए का कितना है, A1, और कॉफिशिएंट ऑफ जे ए वेक्टर का कितना है, B1। और ये कितना है बच्चों, C1। लिख लिया? यस सर। अब फिर स्टार्ट करेंगे बी वेक्टर के बारे में।
तो जब बी वेक्टर के बारे में लिखेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ आई के नीचे ही कॉफिशिएंट ऑफ आई लिखा जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ जे के नीचे ही कॉफिशिएंट ऑफ जे लिखा जाएगा, और कॉफिशिएंट के नीचे ही कॉफिशिएंट ऑफ के कैप लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब बच्चों सुनिएगा आगे कैसे करते हैं। आप सबसे पहले लिखते हो आई कैप। क्या करते हो? आई कैप लिखते हो। जैसे ही आप आई कैप लिखोगे, आपको आई कैप के नीचे जो भी नंबर लिखा है ना, जो भी नंबर लिखा है उसको हाइड कर देना। हाइड कर दिया ना? अरे बोलो। यस सर। तो जैसे ही हाइड किया तो बाकी आपको जो नंबर दिख गए ना, बाकी आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो क्रॉस करो, B1 लिख दो फिर। अच्छा, जाना किधर से? तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट फर्स्ट। सो B1 C2 माइनस, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, माइनस का B2 C1। एक बार और देखते हैं बच्चों, आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, जब आपने आई कैप लिखा तो आई कैप के सामने वाला जो नंबर है उसको, नीचे वाला जो नंबर है उसको हाइड कर दीजिए। ये टर्म्स बिल्कुल हाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो जो भी आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? B1 नंबर्स को सिर्फ देखना है, सिर्फ नंबर्स को देखना है, ऊपर वालों के बारे में बात नहीं करना है, ठीक है ना। या उनको भी हाइड कर दो, आप भूल जाओ। तो क्या दिख रहा है आपको? B1 B2 C1 C2 दिखा ना। तो आपको क्या करना है? राइट टू लेफ्ट, सबसे पहला मल्टीप्लाई करना है राइट टू लेफ्ट। सो B1 से C2 का मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे B1 C2, ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, माइनस B2 C1। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट? अब क्या करना है? फिर इसको हटा देना, फिर इसको हटा देना, इसको भी हटा देना, ये सब दिखने लगेगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब लिखेंगे प्लस के बाद, एक बार प्लस लिखा तो दोबारा अल्टरनेट में माइनस, फिर माइनस जे कैप लिखोगे। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही जे कैप आप लिखते हो तो जे कैप के नीचे जो नंबर लिखे हैं ना उनको हाइड कर दो। तो अब आपको क्या दिख रहा है? A1 A2 C1 C2। A1 A2 C1 C2 में आप क्या करोगे? सबसे पहले राइट टू लेफ्ट जाओगे। तो राइट टू लेफ्ट गए तो क्या मिला? A1 C2 माइनस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या मिलेगा? C1 A2 C1। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब फिर से सब दिखना चालू हो जाना चाहिए। अब क्या बचा? आई कैप जे कैप के बाद क्या मिलता है बच्चों? ठीक है। के कैप लिखेंगे तो के कैप के नीचे जो नंबर लिखा है उसको भी इसी तरीके से हाइड कर दीजिए। हाइड कर दिया तो क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? A1 A2 B1 B2। तो मल्टीप्लाई ऑफ B2 विद A1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो इट इज A1 B2 माइनस left to right, so this is A2 B1। is it clear? उसके बाद तो सब दिखने लगेगा। बोलो, समझ गए? ओके, एक कर लेते हैं, एक छोटा सा सर एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर B इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक कर लेते हैं, एक करेंगे बस, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। एक कर लेते हैं बस। तो A क्रॉस B करना है। आप लोग भी मेरे साथ करो, सो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा I कैप, J कैप, K कैप। I कैप का कोएफिशिएंट है 3 4 5 2 3 4। लिख लिया हम लोगों ने, लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं? जब हम सबसे पहले आई कैप लिखेंगे तो आई कैप के नीचे वाला जो नंबर है उसको हाइड कर देंगे। तो हमें क्या दिख रहा है? 4 4 3 5 4। तो राइट टू लेफ्ट, फर्स्टली राइट टू लेफ्ट, तो 4 into 4 is 16 माइनस लेफ्ट टू राइट, तो इट इज 15। इज इट क्लियर? फिर ये सब फिर से दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। अब दिखना स्टार्ट हो गया, फिर लगाएंगे एक बार पॉजिटिव, अब निगेटिव। सो माइनस जे कैप, बेटा माइनस जे कैप लिखेंगे तो जे कैप के नीचे का जो नंबर है उसको हाइड कर दिए।
तो क्या दिख रहा है 3 2 5 4 राइट टू लेफ्ट, तो 3 4 जा 12 माइनस 5 2 जा 10। इज इट क्लियर? फिर भैया फिर हाथ वाथ हटा के जिस तरीके से भी आपने हाइड किया है वो सब हटा दो। अब उसके बाद लिखेंगे प्लस के कैप, तो प्लस के कैप लिखा, तो के कैप के नीचे वाला जो टर्म है उसको आप हाइड करो, तो क्या बचेगा 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8। बच्चों क्या आ गया, क्या आ गया? आ गया ना वेक्टर? Yes, sir. क्या आया? इट्स One I cap I minus cap 2 j cap minus 2j cap j cap plus plus k. k. k cap. Is it clear? Yes, sir. Yes, भी sir. लगा तो ताली बजाओ, क्लैपिंग, और अगर टफ लगा है तो कोई बात ही नहीं, जा सकते हैं आप लोग। So thank you so much for joining this class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye.